City English School System, Mathematics Class 2. Bismillahirrahmanirrahim. Today is April 28, 2020 and the day is Tuesday. Assalamu alaikum, respected parents and dear students. Hope you all are doing well and staying safe at homes. Dear students, recite this dua with me 3 times. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. O my Allah, increase me knowledge. ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. आमीन. Lesson number 9. And the topic of today's lesson is basics of geometry. Lastly, in the previous lesson, we have done with the point, line segment and ray. Today we will learn about vertical and horizontal lines. Vertical and horizontal lines. And after that we will discuss something about multiplication. Okay students, after reading or understanding this lesson, you students inshallah will be able to know about horizontal and vertical lines. Secondly, you will do the multiplication of any number with 0. Third, you can easily do the multiplication of any number with 1. And you would know how to do the multiplication of 2 by 1 with and without carry. ठीक है, ये लेसन पढ़ने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की भी समझ आ जाएगी और आपको किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना आएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 by 1 digits. Okay students, what is geometry? Geometry comes from the two Greek words geo and metron, and collectively it means the measurement of the earth or earth measuring. Clear? Geometry दो अलग अलग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जियो एंड मेट्रन. जियो अर्थ को कहते हैं, मेट्रन कम्स फ्रॉम द वर्ड measurement. So collectively it means the measurement of the earth. Okay students, there are some types of lines आपने देखी होंगी. There are some curved lines, there are some dotted lines or the vertical lines or the diagonal lines और द स्लांटेड लाइंस. ये जिगजैग लाइंस भी आप देख रहे हैं. स्ट्रेट लाइन ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही है. दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन, दिस इज़ द वेवी लाइन और दीज आर द पैरेलल लाइंस. बट टुडे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द वर्टिकल लाइंस फर्स्ट. पहले हम वर्टिकल लाइंस को पढ़ लेते हैं कि वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं. ओके, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, बहुत आसान है. वर्टिकल लाइंस आर द स्टैंडिंग लाइंस. जो भी लाइंस खड़ी हुई होती हैं इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, दे आर कॉल्ड द वर्टिकल लाइंस. ये हिंट इसकी क्या है? दे आर फ्रॉम अप टू डाउन और फ्रॉम डाउन टू अप. ठीक है, या नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ. दे आर स्टैंडिंग लाइंस लाइक दिस. गॉट इट? ओके जी. वर्टिकल लाइंस run from top to bottom or upward and downwards. Show here you are shown with the rectangle. Is that so? In this rectangle there are two vertical lines. See this orange arrows. These two heights or the standing positions of the lines are called the vertical lines. ये जो दो खड़ी हुई lines हैं, orange मैंने यहाँ पे इसको शेड किया है, these are the vertical lines. Got it? तो vertical lines are the standing lines. जो भी खड़ी हुई lines होंगी they are called as the vertical lines. Okay जी, next. Okay, see the people. There are many people who are standing over here. बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो कि खड़े हुए हैं. So खड़े हुए लोग किस पोजीशन में हैं? They are in स्टैंडिंग पोजीशन, सो दे आर इन वर्टिकल पोजीशन एज वेल. तो ये सब क्या है? वर्टिकली प्लेस हुए हैं, ये सब वर्टिकली खड़े हुए हैं. गॉट इट? तो ये जो भी स्टैंडिंग पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं मैथ्स में? दिस इज द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द पीपल और द लाइंस. तो ये सब क्या है? वर्टिकली खड़े हुए हैं.
They are all vertically standing. Next, okay, there are some trees. यहाँ पे आपको कुछ 5 ट्रीज नज़र आ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो इन द वर्टिकल पोजिशन बिकॉज ये सब भी क्या है, स्टैंडिंग पोजिशन में हैं और ये सब खड़े हुए हैं, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द वर्टिकल पोजिशंस. गॉट इट. तो ये सब क्या है, वर्टिकल पोजिशंस में खड़े हैं, तो ये वर्टिकली पोजिशनड है. ओके, नेक्स्ट कम टू द हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस, वेरी इजी डेफिनेशन इज कि स्लीपिंग लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस. जो भी स्लीपिंग लाइंस होती हैं, जो भी लेइंग लाइंस होती हैं, जो भी लेटी हुई लाइंस होती हैं, जो स्लीपिंग पोजीशंस में होती हैं, दे आर कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइंस. ओके, लाइक दिस देयर आर मैनी लाइंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ये सब क्या हैं, स्लीपिंग पोजीशन में हैं, सो दे आर ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस. ये सब के सब क्या हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. ओके, सी द एग्जाम्पल लाइक दिस. देयर आर मैनी लाइंस जो कि छोटी भी हैं, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, मीन्स देयर आर सो मैनी लाइंस विच आर डिफरेंट इन साइजेस. आप देख रहे हैं कि कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं, बट दे आर ऑल द स्लीपिंग लाइंस. ये सब लेटी हुई लाइंस हैं, तो दे आर कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइंस. Like this is the sleeping position of the baby and the mother, so these are the horizontal positions. These are the horizontal positions. जो भी sleeping position है उसको हम horizontal position कहते हैं. horizontal position. horizontal position of a tree like this. अगर एक tree गिर गया है और इसकी जो अब पोजीशन है, this is the sleeping position or we called it as a horizontal position. Very good. Okay, see this horse and there are so many stripes on this horse. और ये किस फॉर्म में है, सारी इसकी जो स्ट्राइप्स हैं, they are all the horizontal lines on its body. Is that so? इसकी बॉडी के ऊपर जितनी भी लाइंस हैं वो सब लेटी हुई लाइंस हैं, स्लीपिंग लाइंस हैं, so they are the horizontal lines. They are the horizontal lines. Okay, vertical position is like this, the standing position as we have done. हमने पढ़ लिया है ना कि vertical position क्या है, the standing position, and the horizontal position is sleeping position. Very good. Horizontal line कैसी है, sorry vertical line, इट इज़ द स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस. मैथ्स में हम लाइंस पे काम करते हैं ना, लाइंस पे या लाइन सेगमेंट्स पे. सो वर्टिकल लाइंस इज द स्टैंडिंग लाइन. वर्टिकल लाइन इज द स्टैंडिंग लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, आप बताएं, गेस करें. हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी है? यस, वेरी गुड. इट इज़ द स्लीपिंग लाइन. इट इज़ द स्लीपिंग लाइन. वेरी गुड. सो जब भी आप स्टैंडिंग लाइन देखेंगे तो मैथ्स में हम क्या कहेंगे, दिस इज द वर्टिकल लाइन. और जब भी आप स्लीपिंग लाइन देखेंगे दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन. इन दोनों के आपने अच्छे से स्पेलिंग याद कर लेने हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग, हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग. ओके, व्हाट इज योर होमवर्क? सी योर होमवर्क. You are given with activity number 1. Observe the things which are present in your home. Tell which are horizontal and which are placed in the vertical position. Okay, students, अब आपकी एक्टिविटी ये है, बहुत आसान एक्टिविटी है. आपने अपने घर में मौजूद चीज़ों को देखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल बेड है, या आपके घर में पिलर्स हैं, या आपके घर में डोर्स हैं. Whatever the things are present in your home, you have to observe all the things and then अब आपने फिर क्या बताना है कि कौन सी चीज़ें हॉरिजॉन्टल हैं और कौन सी चीज़ें वर्टिकल हैं. सो मीन्स यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल थिंग्स. आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं अपने अच्छे रजिस्टर पे. आपने उन दोनों चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि वर्टिकल भी होंगी और जो हॉरिजॉन्टल भी होंगी. सो यू हैव टू मेक 2 सेपरेट लिस्ट्स. ओके, एक्टिविटी नंबर 2. Activity number 2 is
this house is given to you, the picture of the house is given to you, you have to tell the number of vertical lines used in this house. इस house को बनाने में जितनी standing lines use हुई हैं, vertical means the standing lines, उनको आपने count करके लिखना है, और उसके बाद the number of horizontal lines, और जितनी भी sleeping lines हैं, जितनी भी लेटी हुई lines हैं, आपने उन horizontal lines को भी count करके इस box में लिखना है. Okay, the next topic is multiplication of two digits by one digit. Multiplication. Multiply the following: 24 multiply by 2. Now you are going to multiply two digits by a single digit, that is 2. 24 को 2 से multiply करना है, तो सबसे पहले हम इस नंबर को vertical position में लिखेंगे. ये आपकी कौन सी position में लिखी हुई है? ये स्लीपिंग पोजीशन है ना, ये लेटी भी पोजीशन है. 24 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. वेरी गुड. अब हम इसे लिखेंगे वर्टिकल पोजीशन में. देखिए मैंने इसे स्टैंडिंग पोजीशन में लिख दिया. सो दिस इज कॉल्ड द यस वर्टिकल पोजीशन. वेल डन, वेरी गुड. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2. अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ भी, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ भी. ओके जी, पहले तो आप ये देख लें कि इसको कहते क्या हैं. जो ऊपर नंबर लिखा होता है जिसको मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट. दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट. और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होता है, अभी आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लायर. 2 इज कॉल्ड मल्टीप्लायर एंड द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट. अब आंसर को कैसे प्रोडक्ट कहते हैं और कैसे ये फाइनल हमें कैसे मिला है? 2 4s are 8, ये हमने इसके नीचे लिख दिया, और 2 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया. 2 2s are 4, तो हमने इसके नीचे यहाँ पे क्या लिख दिया? 4. सो फाइनल आंसर इज 48. और ये किस पोजीशन में है? वर्टिकल पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन में है. जबकि क्वेश्चन हमें किस में दिया हुआ था? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, मीन स्लीपिंग पोजीशन में हमारा क्वेश्चन गिवन था. नेक्स्ट इज टू डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 24 into 3. 24 multiply by 3. Multiply this number. Okay students, the question is given in which form? Vertical or horizontal? Yes, see the position. किस फॉर्म में? Very good, this is the horizontal position. Now first write the question in वर्टिकल वे. अब देखिए मैंने इसको किस वे में लिख लिया है? स्टैंडिंग वे में. स्टैंडिंग वे मीन्स द वर्टिकल वे. ओके जी. नाउ दिस इज योर 1s digit numbers 4 and 3, and this is 10s digit number 2. 2 means it is not 2 but 20 because it is under 10s. So this whole number is 24 and it is going to be multiplied with 3. The first number which is to be multiplied is called multiplicand, and the number which is going to multiply, जो दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने लगा है, that is called multiplier. Okay, now see 3 4 times. 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ें. 3 4s are 12. Good. अब 12 का क्या लगाएंगे? 12 का हम लगाएंगे 2 नीचे और 1 ऊपर चला गया कैरी में. ठीक है, 1 आपका ऊपर गया कैरी में, क्योंकि 12 का 2 डिजिट जो था वो 1s के नीचे आ गया, और 1 हमने ऊपर क्या लगा दिया? 10s के ऊपर कैरी कर दिया. अब 3 का टेबल हमने 2 टाइम्स पढ़ना है. 3 2 times 6, और एक ऊपर हमारा कैरी भी मौजूद है, तो 3 2s are 6, और एक ऊपर वाला कैरी क्या हो गया? 7. वेरी गुड. तो 7 आपने यहाँ पे नीचे लिख दिया. एंड दिस आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट. और जब आंसर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. बेटे इसे दोबारा आप देखें. सबसे पहले हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. 3 4s are, पहले 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12. अब 12 2 डिजिट नंबर है. 12 का 2 आपने लिखना है 1 डिजिट के नीचे, 1s के नीचे, और 1 आपने लगा देना है कैरी.
ठीक है, 12 के 2 डिजिट्स हैं 1 और 2, तो 2 आपने लिखा वंस के नीचे और 1 लगा दिया आपने कैरी टेंस के ऊपर। ठीक है, फिर 3 का टेबल पढ़े। 3 का टेबल पहले हमने 4 टाइम्स पढ़ा था, अब 3 का टेबल 2 टाइम्स आपने पढ़ना है। 3 2 टाइम्स 6, और ऊपर जो आपने कैरी लिया हुआ है तो 6 में 1 को ऐड करेंगे, उस कैरी को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 7। सो योर आंसर इज 7, योर प्रोडक्ट इज 72। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मल्टीप्लाइड कहते हैं, मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर एंड द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ऑलवेज डू रिमेंबर दीज 3 थिंग्स। गॉट इट? ओके जी, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो। अब मैं आपको आज ये बताने जा रही हूँ कि जब भी किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। अब ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि व्हेन द नंबर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो द आंसर इज ऑलवेज ज़ीरो। 2 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो आंसर इज ज़ीरो, 3 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो आंसर इज ज़ीरो, 49 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो आंसर इज ज़ीरो, and the 100 multiply by 0 answer is again 0. So क्या इससे आप कंक्लूड कर रहे हैं, क्या चीज़ आपने इससे पिक की है, क्या हमें पता चला है कि एनी नंबर वेदर इट इज़ 2 और 3 और 49 और 100 जब वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा क्या आ जाता है, ज़ीरो। सो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो आंसर इज ऑलवेज ज़ीरो। इसके बाद आप ये सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन विद वन, जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर हमारे पास क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 3, 49 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 49, and 100 multiplied by 1 answer is 100. So any number multiplied with 1 gives the answer same as the question. ठीक है, जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही आंसर दोबारा आ जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, नाउ इट इज टाइम टू हैव योर होमवर्क अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, दिस वर्कशीट इज अबाउट जीरोस एंड वंस। अब आपने जल्दी से क्विकली जस्ट in a minute you have to solve this exercise, this worksheet. All the numbers are multiplied by 1 or 0. आप देख रहे हैं या तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा 0 आता है, और जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा वही नंबर दोबारा आ जाता है। दिस इज़ द सेकेंड वर्कशीट जो कि मिक्स है, जिसमें कुछ आपके विद कैरी हैं और कुछ विदाउट कैरी मल्टीप्लिकेशंस हैं। पहला क्वेश्चन देखें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है 32 को, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 6, और 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखें, 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 10 आता है। 10 2 डिजिट्स नंबर है, 10 का लगाएंगे 0 इसके नीचे और 1 ऊपर कैरी ले जाएंगे, फिर 2 2s are 4 और 1 कैरी उसमें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो इसका आंसर बनता है 50। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरली in this way you have to multiply these two digits by a single digit number. Okay ji, it's time to have the mental calculations. Today's mental maths question is double of 50 multiplied by 0. What will be the result? आपने 50 का डबल लेना है, 50 को डबल करना है और उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने मुझे इसका आंसर बताना है। अभी लेक्चर पढ़ने के बाद फ़ौरन आपने इसको मुझे ऑनलाइन अभी आंसर्स करने हैं, और जिसका भी आंसर करेक्ट आएगा दैट स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड एज द स्टूडेंट ऑफ द डे। ओके स्टूडेंट्स, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड स्टे एट योर होम्स। Allah Hafiz.